नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, लेकिन आज के इस दौर में यह सपना बहुतों के लिए सपना बन के ही रह जाता है। लेकिन अब आपके शहर आसनसोल में ही आपका ये सपना पूरा हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के निकट मां घाघर बुढ़ी मंदिर के समीप अनंता रेसिडेंसी ने आपके सपने को सच करने का बीड़ा उठाया है। बेहद वाजिब कीमतों पर सुरक्षित माहौल में आपको मिल जाएगा अपने सपनों का आशियाना। बेहद मनोरम प्राकृतिक माहौल में अनंता रेसिडेंसी में प्रकृति की गोद में आपको मकान नहीं, आशियाना मिलेगा। यहाँ से बस स्टैंड, स्कूल, रेलवे स्टेशन, बाजार, अस्पताल सभी बेहद नज़दीक होने से यहाँ रहने वाले लोगों को मिलेगी हर प्रकार की सुविधा। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए अनंता रेसिडेंसी और पाइए अपने सपनों का आशियाना। मोबाइल नंबर 9933121270 और 7076368674। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। कंबल वितरण हादसे को लेकर आज एक बार फिर से भाजपा पार्षद चैताली तिवारी से आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों की एक टीम ने पूछताछ की। आज सुबह 11 बजे पुलिस की एक टीम आसनसोल के गोधुली इलाके में स्थित जितेंद्र तिवारी और चैताली तिवारी के आवास पर पहुंची और 2 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद जब पुलिस अधिकारी आवास से बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं आज की पूछताछ को लेकर जितेंद्र तिवारी की तरफ से भी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। চতুর্থ দিন পুলিশ এলো চেতালিতের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে, কি বলবেন? জিজ্ঞাসাবাদ করা ওদের আইনের মধ্যে পড়ছে, তাই জন্য করছে। কিন্তু একটা কথা বলবো, পুলিশ তৃণমূলের চাপে যতটা হেনস্থা করার করুক, কিন্তু আগে সময় বলবে, সময়ের অপেক্ষা আছে। আমরা মানুষের পাশে আছি। যারা আহত হয়েছে মানুষ, তাদের পাশে আমরা সবসময় দাঁড়িয়েছিলাম, এখনও আছি আর চিরদিন থাকবো। কিন্তু বিরোধীদের বক্তব্য যে শুভেন্দু অধিকারী এইখানেই ছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে কিন্তু একবারও আসেনি। তার মধ্যে এইখানে চৈতালি তিওয়ারিও কিন্তু একবারও এইখানে যাননি বলে বিরোধীদের। না এইটা বলবো না। আমাদের যতটা সহযোগিতা করার, যে মানুষের যে 3 জন মানুষ যে আহত হয়েছে তাদের পাশে আমরা দাঁড়িয়েছি। আমাদের অনেকগুলো কর্মী আছে, তারা পাশে দাঁড়িয়েছে আর দাঁড়িয়ে আছে। এটা একটা তৃণমূলের কুপ্রচার, তৃণমূলের কুপ্রচার। ওরা আসলে নিজের যে মানে যে কীর্তিগুলো করেছে পুরো রাজ্য জুড়ে, শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে নিয়ে ভর্তি নিযুক্তি নিয়ে যেইগুলো জুড়ে, এইবার তো ফায়ার ব্রিগেডের একটা বেরোলো, আরও অনেক দুর্নীতিগুলো, সেইগুলো ঘামা চাপা দেওয়ার জন্যে আসানসোলের একটা এটা করছে। বলছি 7 জন পুলিশ কর্তা গেলেন ভিতরে, কালকেও গিয়েছিলেন 7 জন। জিতেন্দ্র তিওয়ারি বলছে একজন জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা, কি বলবেন? হ্যাঁ, সেটাই তো ঠিক, একজনই করা দরকার। কিন্তু এরা তো মানে ঠিকারে বলতে তো পুলিশ বলে তো নেই, এটা তো দলদাস। এটা তৃণমূলের দাস। এইখানে যে আছে, যে নেতাগুলো এইখানে কিংবা কলকাতা যে নেতাগুলো, সেই নেতাগুলোই ইশারাতে পুলিশগুলো চলছে। সেই বলবে কি এইটা করো, এটা করতে হবে, মাধ্যমে পুলিশ করছে। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে ভিভু ঠাকুর, এক্স কাউন্সিলর আর রাজ্য কমিটির ওবিসি মোর্চার এক্সিকিউটিভ মেম্বার আর পুরুলিয়ার অবজারভার।
गंधर्व कला संगम की तरफ से आज आसनसोल के आश्रम मोड़ इलाके में स्थित एक निजी होटल में संवाददाता सम्मेलन किया गया। यहां पर गंधर्व कला संगम की शाश्वती चैटर्जी, प्रमुख उद्योगपति सचिन राय, सतपाल सिंह कीर, गौरी शंकर अग्रवाल, संतोष दत्ता भी उपस्थित थे। इस मौके पर शाश्वती चैटर्जी ने कहा कि राढ़ बंगाल के सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए 28 तारीख को गोपालपुर फुटबॉल मैदान में एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बंगाल के साथ साथ अन्य प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। उससे पहले एक रैली भी निकाली जाएगी, जिसका मकसद भारत की धरोहर के बारे में नई पीढ़ी को जागरूक करना है। गंधर्व कला संगमेर आजकेर এই প্রেস কনফারেন্স, আগামীকাল আমাদের একটা র্যালি আছে যেটা স্টার্ট হবে আমাদের রেল লাইন ক্রস করে, গোপালপুর রেল লাইন ক্রস করে যে পেট্রোল পাম্প ওইখান থেকে ক্রস করে আমাদের গোপালপুর যে মাঠটা রয়েছে দুর্গা মন্দিরে, সেখানে আমাদের বিভিন্ন রকম সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্লাস সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য একটাই, যেগুলো আমাদের ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস বা যারা পিছিয়ে আছে, যেমন শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব, এই সমস্ত ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে অনুষ্ঠান, যেটা সাধারণত হয় না, খুব কম জায়গায় সেটা হয়। এই কোভিডের জন্য আমাদের এগুলো বন্ধ ছিল, কোভিডের জন্য আমরা করতে পারিনি। এই বছর সেই অ্যানুয়াল ফাংশনটা আছে এবং আপনাদের ডাকার উদ্দেশ্য একটাই যে এদেরকে একটু হাইলাইট করুন, যাতে পিছিয়ে পড়া যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা রয়েছে, যারা সব জায়গায় সুযোগ পায় না এই অনুষ্ঠান করার, তাদেরকে নিয়ে আসা, সমাজের সামনে নিয়ে আসা, তাদেরকে আমরা চেষ্টা করছি। এবং এই অর্গানাইজেশন 2010 সালে আমরা এটা করেছি, তখন আমাদের সুব্রত দত্ত ছিলেন, আরও সবাই ছিলেন, সবাই মিলে আমরা করেছিলাম। এর মধ্যেখানে কোভিডের জন্য আমরা করতে পারিনি। এই বছর এটা করছি অ্যানুয়াল ফাংশনটা, সেটা যাতে সাকসেস হয় তার জন্য সবাই সহযোগিতা আছে। র্যালিতে সবাই আসবেন, আমাদের রামকৃষ্ণেশ্বর মহারাজ থাকবেন, সমাত্মানন্দজি মহারাজ, আমাদের চেয়ারম্যান থাকবেন, আমাদের ডেপুটি মেয়র, সবাইকে বলা হয়েছে যারা অ্যাভেলেবল টাইম যার যেরকম সেরকম তারা এতে থাকবেন, যাতে অনুষ্ঠানটা সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়। তার জন্যে আমাদের সেটা কোনো চেষ্টা ত্রুটি থাকবে না। এবং বিশেষ করে শিডিউল কাস্ট, শিডিউল টাইপ যে মহিলারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং রাঢ় বাংলার যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিকে আমরা তুলে ধরব। যেমন ভাদু, টুসু, আরও ছৌ নৃত্য, বাউল, এই সমস্ত অনুষ্ঠান এখানে হবে। তবে আমি বলবো যে এই অনুষ্ঠানটি আরও ডিটেলসে বলার জন্যে, তারপরে যাতে কারো কোনো কিছু কোশ্চেন থাকে সেটা আপনি করবেন। আপনারা অনেক দিন থেকে আমাদের সংস্থার সাথে পরিচিত। 2012 সালে প্রথম হয়েছিল আদিবাসী উৎসব, সেই থেকেই আসানসোলের বড় আকারের ফিল্ড আইটেম আমরা স্টার্ট করি এবং পরপর প্রত্যেকটা বছরই হতো। ইভেন একটা ট্রেড ফেয়ারও বড় আকারে, যেটাতে আমাদের চিফ মিনিস্টার এসেছিলেন, সেখানেও আমরা একটা বড় একটা রোল প্লে করেছিলাম। তো আফটার দ্যাট, ডিউ টু দাদা তো বললেনই, কোভিডের জন্য সবারই একটা অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং আমাদের এই লাস্ট 2017 যে প্রোগ্রামটা হয়েছিল ফিল্ড আইটেম, সেটার এই বছর আমরা আবার শুরু করছি। তো এটা হচ্ছে হামারি, এটার নামটা একটু চেঞ্জ করেছি। আগে যেমন এটা হতো আদিবাসী উৎসব, শুধুমাত্র আদিবাসীদের নিয়ে, তো এবারে হামারি সংস্কৃতি হামারি পেহচান। তার কারণ হচ্ছে আমাদের 75th ইয়ার অফ এটা কমপ্লিশন হয়েছে সবেমাত্র এবং এবছরটাও চলছে, সেটাকেই ডেডিকেট আমরা করছি। আর আমাদের দুজন খুব অনারেবল এবং প্রতিষ্ঠাতা যে সুব্রত দত্ত মহাশয়, তার উদ্যোগে এই আসানসোল ব্রাঞ্চ কমিটির স্টার্টিং হয়েছিল। তো আমরা এই অনুষ্ঠানটা তার নামেই ডেডিকেট করছি। তার সাথে আমাদের শ্রী লেট দীনেশ টোডিজি ছিলেন, উনি চিফ অ্যাডভাইজার ছিলেন। তো এই দুজনের উদ্যোগ নিয়েই কিন্তু আজকে এত বড় একটা জায়গা আসানসোলে আমরা করতে পেরেছি প্রথম চেষ্টাটা। তারপরে দাদা তো ছিলেনই, আরও অন্যান্য মেম্বার্সরা সবাই পুরনো মেম্বার, অনেকেই তাদের উদ্যোগেই এটা হয়েছে। এখন যে প্রোগ্রামটা আমরা করতে যাচ্ছি 28 তারিখে, এটা এক্স্যাক্টলি 2:30 PM আমাদের র্যালিটা স্টার্ট হবে। আমরা তো জেনেক্সের সামনেটা দিয়েছি, কিন্তু এখনও পারমিশন ওয়েটিং। মোস্ট প্রবাবলি আমরা ওটা ওই প্রিমিয়ারের সামনের থেকেই নেব, কারণ ওই রেল লাইনের একটা প্রবলেম আছে, জ্যাম ক্রিয়েশন আবার হয়ে যাবে, ঝামেলা একটুখানি আসতে পারে। তাই উই আর ট্রাইং, লুকিং ফরওয়ার্ড টু স্টার্ট দ্য র্যালি ফ্রম ইন ফ্রন্ট অফ প্রিমিয়ার, গোপালপুর মেন দিয়ে ঢুকে আমরা পেছন দিক দিয়ে মাঠে ঢুকবো।
ওইখানে 15 মিনিটস রেস্টের পর আমাদের অনুষ্ঠানটা শুরু হবে। তো এই হচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান। আমাদের এবার যেহেতু প্রথম 5 বছর পর এটা ফার্স্ট টাইম আমরা করছি, নেক্সট ইয়ার আমরা চেষ্টা করব এটাকে আরও বড় আকারের করার। তো এবছর আমরা যে টিমগুলো ডাকছি সেটা হচ্ছে আদিবাসী টিম কিছু আসছে, 1-2, আর আপনার ছৌ আসছে পুরুলিয়া থেকে, আর বাউল আসছে বোলপুর থেকে, আর লোকাল কিছু টিমস আমাদের যেমন এর আন্ডারে নৃত্যাঙ্গন, সঙ্গীতায়ন এসব টিমসরা আছে, সেই টিমের মেম্বাররাও পার্টিসিপেট করছে। একটা ভাংড়া রাখা হচ্ছে, বাংলা ফোক আছে, ওড়িশার ফোক আছে। তো এইগুলোতেই আমরা আমাদের সংস্কৃতিটাকে সমাজের কাছে তুলে ধরতে পারবো। সবকটা মোটামুটি অনেকগুলো স্টেট আর আমাদের রাঢ় বাংলার যে আদি কালচার, এই দুটোকে সংমিশ্রণ করে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট করব। তো এটাই হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, হামারি পেহচান। আমরা আপনাদেরকে ইনভাইট করছি, অবশ্যই ভালো করে কভারেজ করবেন। তার কারণ কি, প্লাস প্রেজেন্স দেবেন র্যালি থেকে একদম অনুষ্ঠান পর্যন্ত। ওখানে আপনা আঙ্গান আমাদের যে ইউনিট, ওয়ার্কিং ইউনিট মানে কটেজ ইন্ডাস্ট্রি যেটা আমরা ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি, সেখানকার 32 to 40 মহিলারা ওখানে স্টলস প্রেজেন্ট করছে। তো তাদের আমরা ইন্সপায়ার করব, তাদের যে প্রোডাক্টসগুলো আছে সেটা খাদ্যও কিছু ওরা করছেন, নানান রকম পিঠে, পায়েস, পুলি, এসব এখনকার যে সিজন যেগুলো আমাদের বাঙালিদের। আর তার সাথে বোধহয় কিছু চাটফাট, আমি ডিটেল এখন বলতে পারছি না, চাট, ফুচকা এসব কিছু হয়তো থাকবে। তো আপনারা একটু এনজয়ও করতে পারবেন, আপনারা দেখবেন যে হোমমেড প্রোডাক্ট ওরা কীভাবে করছে মহিলারা। তো এটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। অ্যাট দ্য সেম টাইম মানে কালচার, আর তার সাথে বলে দিয়েছি, তার সাথে আমাদের অনুষ্ঠানটা প্লাস হোমমেড যে প্রোডাক্টসগুলো, ওয়েদার ইট ইজ হ্যান্ডিক্রাফটস, হাতের কাজের নানান জিনিস, আর ফুড প্রোডাকশন, এই দুটোকে আমরা প্রেজেন্ট করছি। আর অ্যাট দ্য সেম টাইম হচ্ছে কালচারাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কালচারাল प्रोटेक्शन एंड देयर माने कि बोलो प्रचार और प्रसार, ये हम लोग का मुख्य माने क्या बोले मकसद है। और इनमें हम लोग सारे जो मेंबर्स हैं बहुत ही एक्टिव है, बहुत ही मतलब सपोर्टिव हमारे मेंबर्स सारे हैं। तो इन लोग सबका सपोर्ट लेके हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो हम लोग, आप लोग आइए, एंजॉय कीजिए, प्रोग्राम देखिए और इसको दूर दूर तक कवरेज कीजिए कि हमारे न्यू जनरेशन्स थोड़ा सा जाग उठे। उन लोग बहुत ज़्यादा मीडियम माने मोबाइल ओरिएंटेड भी नहीं बोलेंगे, मोबाइल भी ज़रूरत है, बट द थिंग इज़ कि अपने कल्चर को लोग भूल जा रहे हैं। तो इनको हम लोग को सामने लाना है। और उसके साथ हमारे मेंबर्स के कुछ गाने वगैरह रहेंगे, कुछ हमारे तरफ से जो कुछ प्रेजेंट कर सके, ये आनंद के लिए कुछ हम लोग भी करेंगे। ओपनिंग सॉन्ग से स्टार्ट होगी और एंडिंग होगी कैंप फायर से। बहुत सुंदर से सजाएं हम लोग प्रोग्राम, तो ज़रूर आइए। ये रिक्वेस्ट है, इन्होंने बहुत स्वाति चटर्जी, अपना सचिन दा ने प्रेसिडेंट साहब जो हैं, और गौरी बाबू और इसके ट्रेजर साहब हैं अपने संतोष दत्तो जी, सारी उन्होंने बहुत मेहनत की है। बस ये थोड़ा सा इनको हाईलाइट करना है। और देखिए आदिवासी लोगों को जो है, उनको उनका ट्राइबल लोग को उनको भी अपलिफ्ट चाहिए, उनको भी थोड़ा डांस वगैरह जो है, हम लोग सब आजकल शहर में रहते हैं, शहर की चीज़ें देखते हैं, उनके गांव वालों की चीज़ें देखें, लोगों को दिखाएं, ताकि वो भी उनसे यंग जनरेशन प्रोत्साहित रहे, उन पर आकर्षण रहे। और इन्होंने जो कॉटेज इंडस्ट्री और जो होममेड इंडस्ट्री स्टार्ट की हुई है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि इंडिविजुअल जो घर की महिला की ये को जॉब दे रही हैं, दे आर क्रिएटिंग जॉब ओरिएंटेड फॉर दिस लोकल वुमेन। लोकल वुमेन का जो प्रोडक्ट्स है उनको हाईलाइट करिए, ताकि लोगों को पता चले और वो उनके साथ उनका सामान खरीद सकें उनकी जानकारी में। और बहुत अच्छा सामान है और सस्ता सामान है, ताकि लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, पता लगाना मेरी रिक्वेस्ट है। आप लोग थोड़ा इसको हेल्प करके, एक तो ये समाज के लिए एक अच्छा काम होगा, इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम होगा, समाज के लिए अच्छा काम होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा काम। थैंक यू सो मच। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ
स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड, नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर, आसनसोल के SB गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आसनसोल फ्रूट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल बाजार में स्थित उनके कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया गया। इस मौके पर संगठन के ऑर्गेनाइजर मोहम्मद इलियास, अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान, कोषाध्यक्ष मोहम्मद इम्तियाज़ सहित एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सदस्यगण उपस्थित थे। मोहम्मद इलियास ने कहा कि आसनसोल शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फ्रूट, वेजिटेबल, फिश सहित सभी जल्द खराब हो जाने वाले पदार्थों का मार्केट ऐसी जगह पर स्थानांतरित किया जाए जहां पर पर्याप्त जगह हो। इसके साथ ही एक मार्केट को चलाने के लिए जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए उनकी भी मांग की गई। इनमें पुलिस स्टेशन, ATM, टी स्टॉल सहित ऐसी कई सुविधाओं की मांग की गई जो कि एक मार्केट को चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। इनका कहना है कि नगर निगम द्वारा काली पहाड़ी में जिस फ्रूट एंड वेजिटेबल होलसेल मार्केट को बनाने की बात की जा रही है वहाँ पर सिर्फ 40 दुकान ही लग सकती है, जबकि बीते तकरीबन 100 सालों से आसनसोल बाज़ार में जो ये मार्केट चल रहा है उन सभी दुकानदारों को अगर स्थानांतरित करना हो तो कम से कम 400 दुकानें बनानी होंगी। आज जो आप ये पत्रकारों से रूबरू हो रहे हैं, क्या मुद्दा है और आपकी क्या बात है? आप लोग तो देर से आए, मेरे सदर सेक्रेटरी भी चले गए, खैर ठीक है। मुद्दा ये है कि हमारा 100 साल से ज़्यादा ये आसनसोल फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन फिश, फ्रूट, वेजिटेबल इस जगह में बिजनेस कर रहा है। तो उस ज़माने में तो आबादी बहुत कम था, उस ज़माने में आबादी बहुत कम था, 2 लाख 2.5 लाख की आबादी थी। आज का डेट में आबादी 25 लाख से अबव है। तो मसला ऐसा है कि हम लोग का अब जगह नहीं है, रोड पे हम लोग को बिजनेस करना पड़ रहा है। फ्रूट्स का, वेजिटेबल का चल रहा है ना, तो वेजिटेबल का ये चल रहा है। तो हम लोग एक प्रशासन को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को DM के थ्रू इंफॉर्मेशन किया है कि हम लोग को एक बाउंड्री के अंदर फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन, वेजिटेबल मार्चेंट एसोसिएशन, फिश मार्चेंट एसोसिएशन, इसके अलावा जितना भी कच्चा धंधा है, पेरिसेबल गुड्स जो है, एक बाउंड्री के अंदर में हो, नियरेस्ट 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, ताकि हमारा चीज़ पहुंच जाए टाइम पे और वो सेल हो जाए। अगर एक दिन हमारा डिटेन होता है कोई कच्चा चीज़ तो दूसरा दिन वो सड़ जाएगा। तो ये हम लोग का डिमांड है। और अभी हम लोग जो GT रोड में बिजनेस कर रहा, फल और सब्जी का या मछली का जो भी, तो किसी टाइम कोई बड़ा दुर्घटना, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये इस चीज़ से सेफ्टी हो। अगर हम लोग चले जाएंगे तो सारा चीज़ सेफ्टी हो जाएगा। आज दिन का एक तो रिक्स है। तो आप
अभी नगर निगम की तरफ से सोचा जा रहा है या इस पर काम शुरू भी हो चुका है कि काली पहाड़ी में इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा? काली पहाड़ी में 35 से 40 यूनिट तैयार हुआ है, सिर्फ 40 दुकान, जबकि हमारा पूरा एसोसिएशन मिल करके अगर एक बाउंड्री के अंदर देगा तो एवब 400 होगा, 400 से ज़्यादा, जिसका मैंने एक प्लान बना करके ये प्लान हमने दिया है, ये प्लान हमने दिया है। और हम लोगों ने दिया है एक बाउंड्री के अंदर होने से उसमें सारा इंतज़ाम, सारा फैसिलिटीज़ हमारे इस प्लान में है कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। इतना बड़ा बिजनेस अगर कच्चा धंधा है, रोज़ लेन देन है रुपए पैसे का, तो हमारा वहाँ एक पुलिस फाड़ी भी होना चाहिए, हमारा मतलब हर तरह का सुविधा होना चाहिए, अंदर में पार्किंग होना चाहिए, लेबर क्वार्टर होना चाहिए, टी स्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा तो बहुत सारा जो है सारा सिस्टम इसमें हमने दे दिया है। इसमें एक कॉपी मैं आपको दे दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो ये सारा मामला जगह क्या मुकर्रर की है कि यहाँ पे जगह देखिए, वो जगह देखिए अभी तो कोई जगह मुकर्रर नहीं है, लेकिन जो जगह हम लोग को बोला जा रहा है कि दिया जाएगा वो हम लोग के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। और हम लोग को एक बाउंड्री के अंदर ये सारा आड़त हो तो वहाँ का बिजनेस, गंदगी एक ही जगह होगा, चूँकि फल मछली सब्जी इससे गंदा होता है, जो कूड़ा करकट होता है वो एक बाउंड्री के अंदर होगा। शहर मेरा क्लीन होगा, शहर को सुंदर बनाने का मौका मिलेगा हमारा प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को। निगम से तो बात बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन नगर निगम तो आज तक, आज 20 सालों से हम लोगों का बातचीत चल रहा है, जिसमें मैं खुद मौजूद था, लेकिन आज तक मसला का हल नहीं हुआ। तो हम देखते हैं नगर निगम के पास उतना जगह नहीं है कि इतना बड़ा मार्केट दे सके एक बाउंड्री के अंदर। तो हम लोगों ने डीएम के थ्रू गवर्नमेंट से डिमांड किया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का रूल्स में जो मार्केट सिस्टम है वो बना के हमको दे, जो गवर्नमेंट का सिस्टम में है वो बना करके दे, और हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम भी चाहते हैं मेरा शहर डेवलप हो, मेरा शहर ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत बने, हर सारे लोग एक एंजॉय करें शहर में। लेकिन ये कचरा रहेगा तो कैसे एंजॉय होगा, नहीं हो सकता ना। तो हम चाहते एक बाउंड्री का अंदर हो और गंदगी हो अंदर, हो अंदर से ही साफ़ सुथरा हो जाए, ये हमारा मेन मकसद है। मोहम्मद इलियास हमारा ये प्रेसिडेंट साहब हैं, मोहम्मद रिजवान साहब, सेक्रेटरी साहब हैं जावेद खान साहब, ये ट्रेजर हैं हमारे इम्तियाज़ साहब, मोहम्मद इम्तियाज़ साहब, हमारे सब मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, ये सब हमारे बहुत एक्टिव वर्कर हैं, मतलब फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन के। हम लोग को सबसे पहले जब हम लोग मेयर के पास गए थे, जब विधान उपाध्याय जी आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जब वो शपथ लिए, हम लोग उनसे मिलने गए तो बताए हम लोग को कि मार्केट का काम चालू है, जो काली पहाड़ी में आप लोग भी देख रहे हैं, वो मार्केट हम लोग को दिया जा रहा था। मगर हम लोग को मालूम चला बाद में कि जगह हम लोग को नहीं, एसबी फिर एक कॉल आया हम लोग के पास में, इमरजेंसी मीटिंग कॉल आया, जिसमें हम लोग सब्जी वाला फल वाला दोनों को बुलाया गया। हम लोग गए, एसबीसी एसटीसी का जो जगह आप काली पहाड़ी में देख रहे हैं वो जगह हम लोग को दिया जा रहा था, मगर वो एसबीसी एसटीसी का जगह जो है वो हम लोग को 5 साल का लीज पे दिया जा रहा था, जिसका कोई नामो निशान नहीं है कि यहाँ फ्रूट मार्केट का बोर्ड लगेगा, कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम लोग एसबीसी एसटीसी का बात किया जा रहा था। हम लोग वहाँ पर गए थे, मेयर साहब भी गए थे और हम लोग के चेयरमैन साहब भी गए थे, जाके हम लोग सब देख के आए, मगर हम लोग को जगह समझ में नहीं आया और आज तक हम लोग पास कोई नहीं आया। इसीलिए हम लोग सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि हम लोग को जो है जल्द से जल्द हम लोग को बाहर किया जाए। आए दिन आप देखिए रात 11 बजे का हाल देखिए कैसा, सुबह 8 से 10 का ये हाल देखिए कैसा आसनसोल में गैदरिंग हो रहा है, ट्रैफिक समस्या बहुत हो रहा है। इसीलिए जल्द से जल्द हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश है कि हम लोग को देखें और जल्द से जल्द बाहर करें। मेरा नाम लड्डू भाई, फ्रूट मार्केट। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हम लोग जो ये फ्रूट मार्केट है काफ़ी पुराना है और हम लोगों का जो अभी जगह का कमी का कारण जो हम लोग रोड पे माल बेचते हैं, जो आए दिन कोई भी भारी एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम लोग प्रशासन को हम लोग कई बार एप्लीकेशन किया, कई बार बैठकी किया, अभी तक कोई ऐसा सूटेबल जगह हम लोग को नहीं दे पा रहा है कॉर्पोरेशन।
और ये SBST हो या फिर कालीपाड़ी में इस तरह का स्टॉल बना के वो मंडी समिति जो बंगाल गवर्नमेंट बंगाल में 4-5 जगह दिया है उसी कंडीशन में हम लोग को बना के दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम लोग भी बंगाल में, आसनसोल भी बंगाल पड़ता है, ऑल ओवर इंडिया भी वही सिस्टम में है जो सिस्टम है बंगाल में 4-5 जगह, दूलागढ़ है, मालदा है, रिसड़ा है, सिल्लीगुड़ी है, ठीक है ना। तो हम लोग को आसनसोल हट के नहीं है जो हम लोग को एक खिलौनों का तौर पे ये SBST वाला जगह दिखा रहे, कभी ये दिखा रहे, ऐसा नहीं। जगह ऐसा दिखाइए जो हम लोग का मंडी जाके वहाँ पे परमानेंट मंडी समिति बने, जिसमें जो मंडी समिति का जो रूल है उस रूल के हिसाब से हम लोग जाना चाहते हैं। और हम लोग ज़्यादा कोई प्रशासन से डिमांड नहीं कर रहे कि हाँ हम लोगों को ताजमहल बना के दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। जो मंडी समिति का जो रूल है वो हम लोग मंडी समिति बना के दिया जाए परमानेंट, कोई रेंट नहीं कि हाँ 25 साल का ये थ्रू वेस्ट बंगाल के थ्रू हम लोग को मिलना चाहिए। और कोई हम लोगों को ये 25 साल का लीज या 20 साल का लीज 5 साल में फिर आपका एग्रीमेंट चेंज किया जाए, इस तरह का कोई कंडीशन हम लोग के साथ नहीं किया जाए। बस बंगाल गवर्नमेंट से हम लोग को रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, खास करके अपना चीफ मिनिस्टर ममता दीदी से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोगों को जो बंगाल में कई जगह आपने जो मंडी बना के दिया अपने थ्रू, उसी थ्रू हम लोग को आसनसोल में दिया जाए। मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज, मैं फ्रूट मार्चेंट एसोसिएशन का ट्रेजर बोल रहा हूँ। आसनसोल के पोलो मैदान में आज एक क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। यह क्रिकेट मैच मेयर एकादश बनाम कमिश्नर एकादश के बीच खेला गया। एक तरफ मेयर विधान उपाध्याय के नाम से बनी मेयर एकादश थी तो दूसरी तरफ कमिश्नर राहुल मजुमदार के नाम से बनी कमिश्नर एकादश थी। दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखा गया और अंत में मेयर एकादश ने बाजी मारी। একটাই কথা বলার আমাদের, সেটা হচ্ছে যে মানে স্পোর্টসের যে ভূমিকা আছে, যে আমাদের যারা এত বয়স্ক আছেন অনেকে আমরা রেগুলার খেলি না, কেউ কিছু করি না, হয়তো আগে খেলতাম, কিন্তু স্পোর্টসের এমনই একটা ব্যাপার যে তার জন্য সবাই একসাথে নেমে আজকে এই একটা উপভোগ্য খেলা হলো। খেলায় হার জিত আছে, মেয়র একাদশ খুব ভালো খেলেছে, যোগ্য টিম হিসেবে জিতেছে, কমিশনার একাদশও চেষ্টা করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে জিতলো হচ্ছে স্পোর্টস, জিতলো হচ্ছে ক্রিকেট। এবং আমরা এরকম খেলতেই থাকবো, একটা ম্যাচে সিরিজ শেষ হয় না, আরও ম্যাচ হবে, তাতে হয়তো সিরিজ লেভেল হবে, হয়তো কমিশনার টিম এগিয়ে যেতে পারে। থ্যাংক ইউ। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।